आखिर हम क्या करें? हम मोबाइल देखने के एडिक्टेड हो गए हैं और अब हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है। तो अभी तक ये सिचुएशन तो उस तरह से क्रिटिकली आया नहीं था, और अब अगर आ गया है तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े लोगों को, हमारे छोटे लोगों को भी, बच्चों को भी आ गया है। तो आपको उसके पैरेलल में कुछ तो लाना होगा जिससे वो एडिक्शन को दूर हो जाए। आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन गड़बड़ाने लगा है बच्चे को पढ़ने में, तो कौन सी चीज़, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। हमने तो ये एक्सपेरिमेंट किया कि देखें बच्चा कंसंट्रेट करता है कि नहीं, उधर से छोड़ करके इस तरफ डाइवर्ट होता है कि नहीं, और मेरी कोशिश को देखिए आप कितनी कामयाब है। ठीक हो गया। ऐसे इसको देख करके हम लोगों को ये लगा कि बच्चा तो मर ही जाएगा, लेकिन बच्चा मरा नहीं, और 2 बच्चा साथ रहा, और उस दोनों बच्चे को बत्तख अपने साथ लेके चली गई। ये उसका ट्रेनिंग था कि तुमको इतना तो रहने तुमको है, इतनी हिम्मत तो जुगाड़नी, तभी तुम जिंदा रहोगे, तो नहीं रहोगे। और वो वीडियो किसने लिया था, कोई बता सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप एक बार। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने लिया था, ब्रिटेन का जो रेडियो चैनल है, टीवी चैनल, उसने लिया था। और आप खुद देखिए, कुरान हम पढ़ते हैं और इस दुनिया पर नजरसानी, गौर वो करते हैं, हम नहीं करते। Sergeant Dennis Copping, 24, from Southend-on-Sea, Essex, flies Curtiss P-40 Kitty Hawk fighter bombers for the RAF's 260 Squadron based in northern Egypt. Copping takes off on the 28th of June 1942 in P-40 ET-574 on a ferry flight. His task is to deliver the aircraft to another Egyptian base for undercarriage repair and possibly to repair flak damage to the fuselage. Copping would have to fly the aircraft with the undercarriage fully extended due to earlier damage that was going to be repaired. तेल के टैंकी में कुछ गड़बड़ी होती है जिसके रिपेयर के लिए इसको भेजा जा रहा है। Copping, an experienced and competent pilot, powers his aircraft down the runway and takes off into the clear North African air. देखिए इतने दिन तक वीडियो को रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। But something goes disastrously wrong, and he and his aircraft are never seen again. इसके बाद कभी नहीं दिखाई पड़ा। But then, one day in March 2012, a Polish oil worker exploring in the Sahara Desert discovers a remarkably well-preserved P-40. It has sat in the desert 400 miles from the nearest civilization. It is ET-574, missing for an astounding 70 years. There was no sign of Flight Sergeant Copping. But all the evidence pointed to him having survived the crash. The aircraft's nose was pointing into the prevailing winds and had been sandblasted clean of paint over 70 years. The propeller and nose cone had been torn off the aircraft when he had made a wheels-down landing, the undercarriage collapsing. There was also evidence of shrapnel damage from flak. This damage has never been fully explained. Over 7 decades in the desert, the wind had destroyed the fabric covering the tail sections. But the RAF roundels on the sides of the fuselage were still visible. म्यूजिक देखिए। The aircraft's guns were still fully बंदूक है loaded. उसका। Efforts were made to try to find out the fate of Flight Sergeant Copping. Parts of a parachute were found close to the wreck, पैराशूट indicating that बगल he में had दिखाई set पड़ा। up a camp whilst awaiting rescue. But no rescue ever came. Later searches revealed human bones, an RAF brass button, and another piece of parachute 3 miles from the wreck, perhaps indicating that Copping had eventually tried to walk out of the desert and perished in the attempt. 3 माइल दूर में उसका जूता और कुछ कपड़ा मिल गया। इसका मतलब है वो वहाँ से निकल के पैदल 3 माइल तक गया, लेकिन सहारा में चूंकि चारों तरफ बालू है और आबादी 400 किलोमीटर दूर है।
बेचारा रास्ते में सूख के मर गया, हड्डी पसली तक नहीं दिखाई पड़ा। आप देखिए क्या हुआ। Today, ET-574 sits outside the War Museum in El Alamein, Egypt, after a deal to bring her to Britain fell through. She's been rather badly restored and sports an incorrect colour scheme, but she has been saved from... आज 70 साल के बाद वो फ्लाइट का पानी, वो जो हवाई जहाज थी, उसको वहाँ से उठाया गया और मिस्र के, इजिप्ट के म्यूजियम, वार म्यूजियम में उस प्लेन को रखा गया, सजा के, सब कुछ करके। मेरे भाई, यही नसीहत है। हम अपने घर में उन पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं। मेरी अम्मा बेच दी, वो फलाने को बेच के चिनिया बादाम खरीद लिया। देखिए उसने क्या किया, उन चीज़ों को फेंका नहीं, बल्कि उसके लिए एक म्यूजियम बना लिया। और उस म्यूजियम में आज लोग मिस्र जाते हैं तो जाके उस म्यूजियम में उस किटी हॉक के उस प्लेन को भी देखते हैं। जाकर जो देखते हैं उनको पैसा भी लगता है। यही बात मैं बोल रहा हूं कि हम इससे नसीहत ये लेना चाहिए हमको कि हमारे पास कोई चीज बेकार नहीं है। उस दिन हमने बताया था कि घर का हर सामान मेरा काम का है, मेरा टूटा हुआ साइकिल भी काम का है। हम उसको फेंके नहीं, बल्कि हम उसको गौर करें कि इस पर क्या इस्तेमाल हो सकता है, किस तरह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, As for Flight Sergeant Cobbing, identifying his remains have proved difficult. He is still in the desert, somewhere near the crash site. भाई, हाँ, प्लेन मैं बता दूं कि ये कहाँ दिखाया जा रहा है, कौन दिखा रहा है इसको? ब्रिटेन वाला लोग दिखा रहा है ना। ब्रिटेन इतना आगे हमसे क्यों है? वो सिर्फ इसी वजह से है। उसके अंदर उनके लोगों में ये खासियत है, वो फालतू काम नहीं करेंगे। लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए अपना वक्त नहीं देंगे, वो काम का काम करेंगे। चुनांचे आज हमारे देखने की उसने दिया है कि लोगों, तुम भी देख करके फेंको मत, तुम भी सामान को इस्तेमाल कैसे किया जाता है और अपनी तारीख को, अपनी हिस्ट्री को कैसे यादगार के तौर पर लाई जाती है, उसको देख के तुम सीखो। हम आपको टाइटैनिक मूवी दिखाएंगे, टाइटैनिक 2 भी दिखाएंगे, टाइटैनिक ब्रिटानिका भी दिखाएंगे आपको। लोगों ने सुरखाली टाइटैनिक देख के उसी पर परेशान है। आप समझिए, टाइटैनिक के डूबने के 70 साल के बाद लोग टाइटैनिक जहाज के अंदर गए, समुद्र के नीचे 2500 फीट, 2.5 किलोमीटर नीचे, और जाके वहां उन्होंने देखा और उस पर एक फिल्म बनाई। वो फिल्म देखने लायक थी, बताने वाला आदमी नहीं। बस फर्क यही है कि फिल्म हमने देखा, वाह 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 करते हुए निकल गए। कोई आदमी हमारी तरह डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला नहीं, क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, किस वजह से दिखा रहा है। एक टूटी हुई जहाज जो डूब गई थी, उस पर फिल्म क्यों बनाई गई, ये बताना फिल्म दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। चुनांचे आज आपको हमने ये दिखाया, और पिछली आगे जो हम फिल्म दिखाएंगे आपको 2-4 रोज के बाद, उसमें इस ट्यून का इस्तेमाल होगा कि कैसे हम ट्यून के जरिए अपनी अफसुर्दगी को, यानी हम सैड हैं, हम खुश नहीं हैं, का इजहार करते हैं। देखिए कैसे वो सामने दिखा रहा, उतना बर्फ के बर्फानी हुई हो रहा, भीग रहा बेचारा। हाँ भाई, देखें कौन कौन लोग खा रहा है। बहुत अच्छा पकवान जानते हैं, बहुत इसमें दिखाई भिंडी फ्राई जरा 2 प्लेट और भिंडी फ्राई भाई, मछली की तरह लग रहा है। मछली पहले हम ये समझे कि मछली है, मछली भिंडी फ्राई के धोखे में तो मछली समझे पर मछली है भाई। अगर मछली फ्राई बोल दिया तो ज्यादा कारनामा होता। आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाई थी बीबीसी की, तो बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड। हाँ, हमने ये बात बताई थी कि यूरोप के लोग, बाहर के लोग, हिंदुस्तान के बाहर के लोग तरक्की इसलिए करते हैं। किस लिए तरक्की करते हैं, कोई बोल सकता है?
हमसे हट के और आगे दो चीज सिखाया जाता है। हमसे हट के और हमसे आगे सोचते हैं। वो हमारी तरह बैंक में पैसा जमा नहीं करते, बल्कि जो वो कमाते हैं उसको दुनिया भर में घूम करके वो दुनिया को देखते हैं। ठीक, सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि उसको रिकॉर्ड करके रखते भी हैं और आपको दिखाते भी हैं। चुनांचे हमने एक पहाड़ी बत्तख का वीडियो दिखाया था, आप लोगों ने देखा? ए लड़का अब रखो, पहाड़ी बत्तख का हमने वीडियो दिखाया था कि बत्तख अपने बच्चे को पहाड़ से कूदवा रही है और वो उसका ट्रेंड है, ऊपर वाले ने इसको ऐसा हिसाब लगाया। दूसरी वीडियो हमने आपको दिखाई एक जहाज की, कहां के, जो मिस्र से चली थी और फिर कभी अब वो अपनी जगह पर नहीं पहुंची। 70 साल के बाद वो जहाज कौन देखा? टूरिस्ट लोग नहीं थे, बल्कि वो लोग जो सहारा डेजर्ट में तेल तलाश करने वाले लोग थे, वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि जहाज एक तो पड़ी हुई है। सहारा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका। हाँ, वेरी गुड, सेंट्रल अफ्रीका में। आज फिर हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि 3 चीज है उस वीडियो में देखने की। एक ये है कि वो जहाज मिलती है, उसके बाद उस जहाज का कोड नंबर, लॉट नंबर, हर चीज को बताया जाता है। जहाज का रिकॉर्ड खोजा जाता है और ये पता चलता है कि वो जहाज मिस्र से चली थी, इजिप्ट से चली थी। और उसके बाद उसके सिलसिले से एक वीडियो बनाई जाती है और हम आपको देखने के लिए वो वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में एक और चीज देखने के लायक है कि ये खुशी का मुकाम था नहीं, गम का मुकाम था कि मेरा एक ड्राइवर, मेरा एक पायलट मर गया, हमको पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इस वीडियो को दिखाते हुए उन्होंने जो म्यूजिक दी है, उस म्यूजिक को सुनिए, उससे आपको एहसास होगा कि ओ ये गम का म्यूजिक। जैसे हम लोग यहाँ कोई मरण में बांसुरी बजाता है ना भाई, उसी तरह से यूरोप वाले लोग भी जो अपने ऑर्गन बजाते हैं उसमें गम का एक अलग किस्म का मिजाज है। तो अभी आप वीडियो में वही चीज देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपके आंख खोलने के लिए आया गया। कोई बता सकता है? क्यों इतना खर्च करके एक 70 साल पुरानी जहाज को ला करके पेंट उंट कर करके म्यूजियम में क्यों लगा? कोई बता सकता है कि हम अपनी दादी का, नानी का, नाना का फोटो क्यों रखते हैं? नाना का सामान क्यों रखते हैं कि ये नाना का चाबी है, क्यों? और हम अपने नाना का तलवार रखे हुए क्यों रखे हुए हैं? ताकि हम अपनी पुरानी याद को ताज़ा करके, अपने खानदान की याद को ताज़ा करके हमारी भी हिम्मत अफजाई हो। इसी तरह से उस हवाई जहाज को वो म्यूजियम में ले जाके रख करके अपने पूर्वजों को के वो कितने बहादुर थे और किस तरह से उन्होंने जान का नजराना पेश किया, और उनकी जो मशीन थी वो हवाई जहाज वो कितनी मजबूत थी, उसको ला के उन्होंने रखा कि 70 साल के बाद भी वो मेरा हवाई जहाज सड़ा नहीं। 70 साल तक ड्यूरेबिलिटी है। वो प्लेन मिस्र से 1941 में 1941 में उड़ी थी। इसका मतलब है कि हमको कुछ चीज के लिए अपना सीना तानने का चाहिए। वो क्या था कि हमने ऐसी जहाज रखा जो सहारा डेजर्ट में 70 साल रह गई, लेकिन देखिए जो अभी भी ओरिजिनल शक्ल में है। यानी हम अच्छी चीज बनाने के काबिल हैं। इसीलिए हम लोग अपने पूर्वजों के रखे हुए सामानों को रखते हैं ताकि हमको उससे मेरी हिम्मत अफजाई हो कि मेरे दादा वॉरियर थे, उनका ये तलवार है, देखिए तो सर। ठीक है,
अब आगे आपको दिखाते हैं। ये लोहा पिघल के गिर रहा है उसमें। इसको ढाला जाए, देखिए कहां ढालेगा। देखिए लोहा पानी की तरह पिघला हुआ है। देखिए पिघला हुआ लोहा कैसे हो रहा है। तो भरा गया है। लोहा के पानी की तरह हो जाता है तो बड़ा होता है। वेरी गुड। 1400 डिग्री, वेरी गुड। जो वो कितने डिग्री पर? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वेरी गुड, क्लैप। हम एक वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे आयरन ओर से कैसे डिसीजन सभी लेता है, लेकिन अभी के वक्त में वर्सटाइल जो रहता है वही कामयाब। अभी देखा जाए कि अगर कहीं पर कोई किसी को कहीं पर रखता है, नौकरी के लिए भी रखता है, मान लेते हैं अगर कोई हॉस्पिटल है, अगर हम नौकरी के लिए रख रहे हैं तो ऐसे बंदे को रख रहे हैं जो कंप्यूटर में भी माहिर है, जो अंग्रेजी में भी माहिर है, और जो पब्लिक डीलिंग में भी माहिर है। वो जो चौतरफा काम कर सकता है एक साथ, वही आजकल के ज़माने में आगे बढ़ रहा है। अदरवाइज टैलेंटेड तो बहुत है। आप देखते हैं कि 100 में 100 मार्क्स आप अगर फिजिक्स में ला रहे हो तो क्लास में दूसरा बच्चा भी 100 में 100 ला रहा है, 100 में 96 वो भी ला रहा है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया अभी कि दूसरा एस्पेक्ट कितना मजबूत है ये उसको बेनिफिट देता है। अगर दूसरा एस्पेक्ट उसका मजबूत है तो कहीं ना कहीं वो उससे आगे निकलता है। इसलिए वर्सटाइल बनने के लिए हर तरीके की चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप लोग आगे कर रहे तो वो बहुत ऐसी चीज़ें जो हमको खुद नहीं मालूम है। अब जैसे कि बता रहा है ये रेंज है और ये क्लास है, ये हमको खुद भी नहीं मालूम है। तो आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इतना अच्छा माहौल है, जो सीख रहे हैं काबिल तारीफ है। और क्या बताएं, वर्सटाइल बनना है। एक मुलाकात हो तो मेरे पास हो, एक मुलाकात हो तो मेरे पास हो, जीने की वजह तुम बनो, बन के रहबरे मुझको मिला है, तुम्हें कहना मैं मुकम्मल हूँ। मुलाकात
हो, आप देखिए आपका एक साथी सरिया रहा है सामान, मेहनत कर रहा है, तो आप मत बोलिए नहीं, आप आँख को रखिए यहाँ। E574 on a ferry flight. His task is to deliver the aircraft to another Egyptian base for undercarriage repair, and possibly to repair flak damage to the fuselage. Cobbing would have to fly the aircraft with the undercarriage fully extended due to earlier damage that was going to be repaired. Cobbing, an experienced and competent pilot, powers his aircraft down the runway and takes off into the clear North African air. But something goes disastrously wrong, and he and his aircraft are never seen again. But then, one day in March 2012, a Polish oil worker exploring in the Sahara Desert discovers a remarkably well-preserved P-40. जो ABCD पढ़े और फिर ये पढ़ करके एक सर्टिफिकेट देते हैं, एक डिग्री देते हैं और एक काम, ये हम लोगों का है। सभी कहते हैं स्कूल में जाओ ये, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर हमको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, खुद पर आत्मनिर्भर होना है, तो आत्मनिर्भर होने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सीखना होगा। क्या सीखेंगे हम? तो इसको बोलते हैं कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेना है। ये एक तरह का ट्रेनिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब हुआ किसी भी प्रकार का काम करने का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई, लेकिन हम कुछ जानते नहीं, उसको ठेल कर ले जा रहे, कहीं देख रहे हैं कि कहीं कोई मिस्त्री मिल जाता है, हम उसको बनाएंगे ये करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास में अपनी ट्रेनिंग होगी, तुम अपनी जानकारी रखोगे, तो कहीं तुम्हारी गाड़ी खराब होगी, कहीं कहीं तुम्हारे साथ कोई परेशानी होगी, तो तुम खुद से अपना काम कर सकते हो और फिर बिना किसी परेशानी का आगे बढ़ सकते हो। नहीं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए। दूसरी बात है कि आप पाएंगे कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं किया हुआ है, तो हम क्या बन कर रह जाते हैं, एक साधारण मजदूर। तो कोई पूछता है काम है, क्या काम करते हैं, तो मजदूरी। तो पूछेंगे मजदूरी क्या है, नहीं, तो मजदूरी में आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन जब वोकेशनल ट्रेनिंग आप किए हुए रहेंगे, जैसे मान लीजिए आप कारपेंट्री सीखें, तो बहुत सा चीज़ कारपेंटर के रूप में बनाने का आपको नॉलेज आएगा। तो आप उससे क्या कीजिएगा, साधारण मजदूरी क्या है, 400 रुपया। लेकिन अगर आपके पास वोकेशनल माने वो हुनर है आपके पास में, तो आप क्या हो जाइएगा, तुरंत 800 रुपया का आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है कि आप अपने आप को भी अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी अच्छी माने आमदनी बढ़ा सकते हैं, प्लस आप कई लोगों को अपने साथ और भी जोड़ करके काम कर सकते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ डेवलप करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू लर्न, एंड देन व्हेन यू लर्न देन यू बिकम अ लर्नर, देन व्हेन यू बिकम अ लर्नर देन यू स्टार्ट गिविंग योर लर्निंग। जो तुम्हारे पास में आया वो तुम दूसरे को भी देना शुरू करते हो, और इस तरह से लोग सीखते हैं और आत्मनिर्भर होना ज़्यादा जरूरी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में बोलते हैं, ए बुलाओ उसको, उसको देखो, उसको ये करेगा, उसको बुलाओ, ये स्विच देखेगा, ये करेगा। लेकिन अगर खुद से हमको आएगा तो हम खुद से कर सकते हैं कि तो हमारा तुरंत काम हो जाएगा। नहीं तो हम वेट कर रहे हैं, मिस्त्री को फ़ोन किए तो मिस्त्री आ रहा है, बोले कि सर अभी नहीं आ सकते हैं, 4 बजे आएंगे। तो 4-5 घंटा तक हमारा काम हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है, काम हो रहा है, तो अब 4 घंटा 5 घंटा तुम्हारा क्लास खत्म मिस्त्री के भरोसे। अगर हम जानेंगे तो अपना काम करके अपना क्लासेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए यू मस्ट लर्न एंड यू हैव टू, एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई एम इंस्पायर्ड विद इट एंड दिस वाज माय आइडिया। ये मेरे, हम बहुत इस चीज़ को देखकर बहुत खुश हैं और कहना ये चाहेंगे कि मेरे मन में ये बहुत दिन से विचार चल रहा है कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है अपने एरिया में, अपने सराउंडिंग में, कि ये बच्चे अगर कल को कहीं बाहर जा रहे हैं, जिसके पास अपनी एक हुनर है, जिसके उम्मीद पर वो अच्छा कुछ और कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। आज के
रिस्पेक्टेड मेहमान का, जो हमारे गेस्ट है, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि एक बार फिर ताली से इनका स्वागत कीजिए और जोर से बजाइए, आवाज नहीं सुन रहा। हमने अपने जिंदगी के कुछ हिस्से काटे हैं मिशनरीज में, लेकिन उस मिशनरीज में एक जबरदस्त चीज मैंने सीखा है कि समय जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने ये शब्द या ये जुमला इस्तेमाल किया, सेंटेंस, कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने अपना कीमती वक्त दिया। हर एक इंसान के पास जो वक्त है बड़ा कीमती वक्त है। दूसरी बात, जो हमारे मेहमान साहब ने अभी एक बात कही, बड़ा मामूली बात था जरूर, लेकिन इन्होंने एक बड़ा अच्छा चीज बताया कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया है तो हम मिस्त्री को टेलीफोन करते हैं तो ये विल कम 4 बजे आएगा, तो 4 घंटा तक आपका काम सफल हो गया। दुरांचे इसमें एक मैं 5 मिनट का वक्त लेके बताता हूँ। मेरे साथ एक बार ये वाकया हुआ, हम जब वोल्टास में ट्रेनिंग करने गए थे बम्बई में, तो मेरे साथ मेरा सुपरवाइजर भी गया था। उसको सुबह में नहाकर पूजा करने की बड़ी आदत लगी हुई थी। तो हम सोए हुए थे और सुपरवाइजर चला गया, साबुन लगा के आंख में, पानी बंद हो गया बाथरूम का। बम्बई ऐसे शहर में बेहतरीन होटल 5 स्टार में ठहरे थे हम लोग। हमको बोला कि जरा जल्दी से जाओ, पसंद देखो क्या हो गया। तो हम गए, काउंटर पर जो आदमी था, मैंने रिसेप्शनिस्ट कहिए, मैंने देखिए हाँ पानी बंद हो गया है, टेक्नीशियन खड़ा हुआ, घबराइए नहीं। 2 मिनट तक पानी नहीं आया, फिर हम उसको बोले कि पानी का मोटर कहाँ है दिखाओ। तो उसने हमको समझा कि साधारण आदमी है, ये तो एक ये है होटल में ठहरा हुआ व्यक्ति है। तो हम बताए कि हम टेक्नीशियन है, आईटीसी में इंडस्ट्रियल मोटर को देखते हैं। तो बड़ा खुश हुआ, ये बिकेम वेरी ग्लैड कि आप पहले के लिए बताया सर, तुरंत पहले हमको सर बोला। हम अंदर जाके देखा, 3 तरह के अंदर में एक सिंपल तार खुला हुआ है और जो मिस्त्री काम कर रहा है उसके समझ में नहीं आ रहा कि कभी इसमें जोड़ूं कि कभी इसमें जोड़ूं, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं। उनको हटाया, उसको हटा के बोला तार जोड़ो, इसको तार जोड़ा, लाइन किया, चालू किया। उस दिन से जो 5 दिन का ट्रेनिंग था वोल्टास में, स्विच गियर का ट्रेनिंग करने गए थे 33 kV का। हम क्या बताऊं कि उस हल्के से मदद में हमको जो इज्जत मिली है हम बता नहीं सकते हैं। आई कैनॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग, बट एक ही कहना चाहेंगे इन लॉन्ग एंड शॉर्ट कि आपके पास जैसा सर बोले कि अगर स्कूटर खराब होगी तो आप घसीट कर मत ले जाइए, आप खुद का आपके पास जो भी टूल्स अवेलेबल है इसमें स्कूटर में, आप चक्का बदल लीजिए या कुछ कर लीजिए, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे हमारे जो मेहमान ने बताया और बेहतरीन बात बताया कि ये वोकेशनल कोर्स जो है इंसान को करना चाहिए। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कि आप केमिकल इंजीनियर है या आप मैकेनिकल इंजीनियर है कि आप एग्रीकल्चर में कुछ काम कर रहे हैं या मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है, वो एक अलग बहस का मुद्दा नहीं है। ये एक आपके ज़िंदगी में हुनर है जिसकी बड़ी कदर की जाती है पूरी दुनिया में। आज हीरो होंडा मोटरसाइकिल सड़क पर नाच रहा उस तरह से जिस तरह से कभी राजपूत मोटरसाइकिल नाचता था। जैसा कि अभी तक हम लोग सीखे, हम लोग सारे टूल्स के बारे में जाने, उसके यूजेस जाने, तो ऐसा होगा कि हमारे आज के गेस्ट ने बहुत अच्छी बात बोली कि टाइम सेविंग अगर आप जानते हैं तो आप अपने समय को बचा सकते हैं। और फिर अगर आप नहीं जानते तो मिस्त्री के चक्कर में हाल 4 बजे आएगा, आप बैठे रह जाइए। लेकिन अगर आप जानते हैं तो आप खुद कर लिए, टाइम सेव हो गया आपका और आपका काम जल्दी जल्दी होने लगा। तो ये एक बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है कि हम लोग यहाँ आते हैं और खेलने के टाइम में खेलते खेलते हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ इनोवेटिव सीखते हैं और इससे हम लोग को फ्यूचर में भी बहुत हेल्प मिलेगा और अभी भी बहुत हेल्प मिल रहा है। एक बात है, परसों मेरे टीवी का प्लग टूट गया तो
माय फादर सेड कि अब मिस्त्री बुलाना पड़ेगा एंड हम सामने तो नहीं बोले बट जब मेरे पापा उधर चले गए तो हम चुपके से प्लग बदल दिए, स्क्रू ड्राइवर लेके हम प्लग खोल के बदल दिए, बस उसका प्लास्टिक ऊपर का टूट गया, हम दूसरा प्लग लगा दिए। तो जब वो आए उधर से तो बोले बदला कौन, हम बोले हम बदले। तो he was having a smile on his face, very big smile, like he was feeling proud on me and that was a good thing for me. So ये सब बहुत अच्छा था और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। हम लोग हर एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अलग अलग क्लासेस के हैं पर सिर्फ एक ही चीज़ रहे, एक साथ रहे, तो ये बहुत अच्छा है। डिवाइडर कैलिपर में ऐसे रहेगा, ऐसे एक्स पे रहेगा, ये डिवाइडर में नोक रहेगा, डिवाइड करने वाला, भाग देने वाला, ठीक है। चलो बढ़ो बढ़ो जल्दी भाग, तो दूसरे को फिर मौका देना, आगे बढ़ो। और साइड कैलिपर, हाँ साइड कैलिपर, ठीक है, भागो 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 जल्दी जल्दी। हाँ बोलो, नाम देखना उसमें, तो कितना बार बताया कि अगर भूल गया तो प्लास्टिक पर नाम देख लिखा हुआ मिलेगा। बड़ा स्लीप के माने होता है आस्तीन, ये जो आस्तीन है ये खोलिया, ठीक है। लेकिन हम लोग के ट्रेड में, हम लोग के पेशे में वही यहाँ ले मैंने कहा है, हम लोगों के पेशे में तार के ऊपर एक प्लास्टिक चढ़ाया जाता है जिसको कल दिखा दें, उसको कहते हैं स्लीव, ठीक है। आप देखा होगा ट्यूब की तरह रहता है, दो तार को ज्वाइंट किया तो नंगा हो गया, तो अंदर 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 अंदर, ठीक है, स्लीव। आगे बढ़िए, स्क्रू एक्सट्रैक्शन प्लान, और ये किसका साइकिल है जी? एक्सट्रैक्शन प्लान, हाँ निपर, हाँ निपर। स्मॉल कॉम्बिनेशन प्लान। अब आप वही क्वेश्चन पूछिए। हाँ बताओ, इस वायर स्टीपर को उस वायर स्टीपर से जो तपड़िया का छिल रहे थे क्या अंतर पाते हो? सर इसमें क्योंकि वो वायर सिर्फ है ना, छिला ही जाएगा, इसमें पूरा काटा नहीं जाएगा वायर। तो आपका जो सोच है उसको आप जाहिर किया ज़रूर, लेकिन और अच्छा आंसर होना चाहिए। आप बोलिए तो। अल्टीमेटली इन्होंने बोल रहे तार काटने वाला नहीं है, ठीक है, माना थोड़ा बहुत।